So IO package, or actually we call this in short, usually it stands for input output package. So it contains all the input output classes which helps us to deal with file handling. So here you can see I have mentioned file handling in Java, and all types of documents, whatever you have, you can read and write into them. Of course, not because it gives you some basic information, so you cannot actually convert this, but I'm giving you idea when we say file handling. So all these are categories which can be counted in a stuff. So in our class, we will do stuffs on text file, TXT files. PDF and XLS, we need extra library. This class will not be able to do that. We need some extra support from third-party libraries. So maybe in future we will use them. But for now, for basic class, for understanding how these classes works, we will work on text files, TXT files. So the package is java.io. If you want to see, I can show you right here. When we create any Java project, that's what it looks like. By default, we get JRE and SRC, and reference libraries for external libraries we are getting it. And here, if I expand JRE, we have a rt.jar, and if you expand rt.jar, we have lots of packages. And one of the package you can see is java.io. There it is. See, and if you expand this, you can see there's a package. In this package, we have lots of Java classes, right? So now what we are doing here, we need to uh, understand, of course, not all classes, but some of the class. See, I have mentioned here stream, this one. So when we say stream, it means we are talking about some data. Sorry. Yeah. So when we say stream, it means sequence, some flow of data, or you can say sequence of bytes or characters. What is byte here, Shubham? Sir, byte is a unit basically, like bit, byte, MB. Hmm. Yes, So sir, byte big unit है sir. byte unit here, right? This is one of the Yes. smallest unit you can say, which is considered by the IO package. Okay. Okay, sir. So on the base of these types, we have two types of streams in IO package. Byte oriented stream, which is 8-bit, which takes one 8-bit memory, and character oriented stream, which takes 16-bit inform data, or you can say storage. Fine, and that we will discuss in more detail. And there's one more terminology we use in IO package, that is source and sink. Okay, so when we say source, you can say it says starting point, and sink means and Ending, end point. endpoint, right? I don't see the request. Okay, fine. So endpoint and sync. So these are some terms which you'll see, and it's all about location of resource. Okay, so Okay, that's sir. one like high level picture what IO package can do, and we have types of streams inside it, and these are the types. So let's discuss about the types first. So first type is byte oriented classes, right? So we have these classes in our category which we have to discuss. So again, just saving some time. So in byte oriented classes, we have these much classes. Again, these are not like all the classes, some of the classes from this package. So at the top we have object class, right? Parent class. Now we have some child classes, output stream and input stream. Output for writing, input for reading. Okay, I have already mentioned it clearly कि output लिखा है तो उसका मतलब that class will be used for writing something into a file, and that file could be text, PDF, Excel, whatever, depends upon the library you're using. And same way, when we talk about input stream, that means we are talking about reading from the file. So these classes are used to read from the file. These classes are used to write into a file. Okay, Shubham, clear? Yes, sir. Next thing is, see, if I'll give you an idea or example that that's how you have to read or write into file, so that's not the only way. There are multiple ways to do this. So I'll give you the simplest way, because even if you go for a website and search for how to read from file or how to read into a file or write into file, you'll get lots of you know
examples, but they won't make any sense to you unless you actually knows what it is. And if you're reading or doing this package first time, it will confuse you a lot. So always create or read simplest examples for your base creation. Once you have a base, you can read any example. It will help you. Okay, so this was about byte oriented classes. Let me, what else we have here? Next we have character oriented classes. You can see lots of classes are there. So it's hard to remember, I agree, but you can't do anything. You need to just go with the flow. Okay, next type is character oriented classes. So if you have noticed, I have highlighted certain classes, not all, but some of the classes. In byte oriented, I have highlighted file output stream, and for input, I have used file input stream. So we are going to practice these classes only. For writing, we are going to use file output stream. For reading, we are going to use file input stream. Okay, and likewise in character oriented classes, we have again multiple classes, object class at the top. We have two subclasses, writer and reader. This time we have writer and reader. No more output or input. They are clearly stating this, that these are the writer classes and these are the reader classes. And one of the class, two classes are there, file writer and file reader. So these classes will be used for the same purpose, reading into a file or from the file. So when we reach to character, then we will try to use reader file. Okay, so some more idea about these classes are there. Again, we are not going to discuss all classes. There are multiple ways, so we are going to use these classes for our purpose. Next, okay. Next is escape character. Why it is important? I'll show you. So I'll discuss about this later. Okay, we'll come to this point later. But before that, let's create one simple example, and we're going to start with byte oriented classes, which says file um, output. Okay, let's start with file output stream. So we are going to create or write a file. Fine. So here's our package project. I'm going to create a new package here. So right click on src, then new, then package. I'll call this com.pack.io. io is not reserved keyword, so you can use it. Then finish. Here's a blank package. Right click, then new, and I'll say um, file output stream. Test. Fine, so it will be different. If I just keep the same name, so it will confuse you. File output stream. Okay, this is what I'm talking about. File output stream. It is for writing into a text file. Okay, one more thing I can do here. We have this package, right? I'll just remove this one first of all. So I'm going to create a file right here. So what I'll do, I'll just keep this location. Okay, I'm going to copy this, and if you notice, once I will paste here, see what will happen. Main method, right? That's how we'll start. System stuck. Okay, and here I'm going to say string file path equals double quote, and now you will see what I have copied from the path, this e colon slash session slash batch name, then batch number. Copy it, and now I'm going to paste it. See what will happen. Control V. What's the difference here? What happened, Shubham? सर डिफरेंस कैसे मतलब? डिफरेंस मैंने तो कॉपी ये किया था, ई सिंगल स्लैश, यहाँ पे डबल स्लैश हो गया, तो डिफरेंस तो आया ना। मैंने हाँ तो ये सर कॉपी किया आया था, तो। मैं तो ये कॉपी किया था, यहाँ ये कहाँ से आ गया, डबल स्लैश कैसे आ गया? सर इसका नहीं पता। इसका रीजन है escape character. We have a concept in Java which says escape characters, that is skipped by the compiler. Fine. So single slash will be skipped by the compiler. Think about if you use single slash. Let's suppose this is the example, e colon slash this is this. So जब ये compile होगा, what will happen? All the slashes will be skipped. So what will happen to your path? See, it becomes like this, right? This is wrong path, correct? It's not a path for a file. So what we do, we use double slash. So what happens? Single slash from each separator will be skipped,
and remaining will be single character. See, have a look and tell me, does this image make sense to you or not? आ गया सर समझ में ये तो। ओके, तो ऐसे ही जावा में बहुत सारे एस्केप करेक्टर है। वन ऑफ द एस्केप करेक्टर इज स्लैश। ओके, वी कॉल दिस बैकवर्ड स्लैश। ये लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है तो लेफ्ट बैकवर्ड, अगर ये फ्रंट में होता तो फॉरवर्ड स्लैश। गाइस कंफ्यूज होते हैं ओके, कि फॉरवर्ड कौन सा है बैकवर्ड कौन सा है। सो ये फॉरवर्ड स्लैश है, ये बैकवर्ड स्लैश है। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव अ पाथ फॉर आवर फाइल, बट यहाँ पे फाइल का नाम तो है ही नहीं, है ना, ये तो सिर्फ फोल्डर का नाम है। सो व्हाट आई विल यस डू, सर। आई विल से dummy.txt. You can see this is not present in the location right now, it's not here. So you know what's the beauty about this class is it will create this file on the fly, जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तभी इस फाइल को बना देगा वो। But what you have to notice, you have to maintain file outstream stream class, then FIS, let's call this, then equals, then new, and I'm going to use its constructor file output stream. So if you notice we have 3 4 constructors for it, and I'm going to use string one which takes the name. Okay, file output stream, the name, and here I'll pass file path, and it is throwing exceptions, we need to handle it. So best way is, come on, सर वो फाइल इनपुट स्ट्रीम sorry वो sorry लेफ्ट sorry से। yeah, output stream, this one, FOS. Let's import this. Okay, now it will throw exception which says you maybe it could be not found. It says unhandled exception type, file not found. Maybe you are right, the file may be there, maybe not there. So what I will do, I will surround with this draw catch, you know, to handle the exception. This is done. So first step is give the path, give the file path or directory location where file need to be created. Okay, then second step is pass the file path to this class constructor. Fine. Next is quite straightforward. Read the data. Sorry, write into data. Write into the file. How to do that? You have a reference FOS which has everything, and you have to call write. And now you can see we have 3 overloaded write methods. One takes byte array, next one takes int, and third one takes some offset and length stuff. So we will use the first one which takes int. Okay, and let me write 67. Again it will throw exception, so let's handle that. This one, I hope you knows what is exception handling. सर पढ़ा है बट थोड़ा सा भी मैं रिवाइज कर लूंगा इसको भी एक बार सर। रिवाइज कर लीजिएगा, हाँ जी, do the revision. तो फिलहाल what we are doing, we are handling all these exceptions. When we gave the path to file output, it was saying maybe the file not present there, maybe you did something wrong. So it takes that fail safe, it says okay, I don't believe you guys whatever you're passing. So in case if I don't file that file, so I'll throw file not found exception. ये था file not found के लिए. Next, when you are about to write, आप राइट करना चाह रहे हो, मे बी उस प्रोसेस में आपका जेवीएम क्रैश हो जाए, आपका लाइट का कोई इशू आ जाए, या फिर किस तरह से कोड में आप गलत पास कर रहे हो जो राइटेबल नहीं है, इन सच केसेस इट विल थ्रो IO एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। ओके, दिस इज योर पेरेंट क्लास। तो वो भी देखते हैं, वो सब एक्सेप्शन हैंडलिंग में पार्ट है और एक्सेप्शन हायरार्की होती है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने कवर करके रखा है, आप वो बैच देख लीजिएगा क्लास। ओके सर। ओके, एंड लास्ट थिंग, ओके लेट मी रन दिस कोड देन यू विल सी डिफरेंस। तो अभी इतना इतना करके चलाते कोड को। सो राइट क्लिक, अभी वापस दिखाता हूँ, डायरेक्टरी में ये फाइल नहीं है बैच 2 में। ओके, वी जस्ट हैव फोल्डर्स एंड दैट्स इट। सो राइट क्लिक, रन एज एन एप्लीकेशन, एंड देन
Okay, I didn't print anything, so blank message. But if you see here, we have a file here, right? Dummy file is created. And if you open this file, it's saying C. What is C? Have you noticed what I was writing there? 67. Yes, sir. So what happened here? What I got 67 हमने टाइप किया और फाइल मारा C. क्यों? सर पता नहीं। और बिकॉज ऑफ पढ़ा है एसकी कोड्स. नहीं सर, ये नहीं पढ़ा है। अरे हाउ कम इट पॉसिबल? You have done your graduation, right? BTech and whatever. सर बीटेक इन मैकेनिकल सर। अरे मैकेनिकल में किया है. ओके ओके फाइन. सो एसकी कोड एक वर्ड स्टैंडर्ड है. चलो ये बात थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं. आपको एक टेबल दिखा देता हूँ. तो एक वर्ड स्टैंडर्ड टेबल है. ओके, ये किसी के घर का नहीं है, ये एक वर्ड स्टैंडर्ड है. और उस स्टैंडर्ड में कुछ कोड्स दिए गए हैं सभी कैरेक्टर्स के लिए. आपके कीबोर्ड में जितने भी अल्फ़ाबेट आप देख रहे हो, अल्फ़ाबेट मीन्स कुछ भी आप यस देख रहे हो सर। कीबोर्ड में, सबका एक एसकी कोड होता है ये. इसका फुल फॉर्म मैं स्किप कर गया हूँ, चेक कर लेते हैं. कुछ अमेरिकन स्टैंडर्ड कुछ होता है ये. अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इंटरचेंज. तो ये सब एक्चुअली कॉलेज में जो आईटी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको एटलीस्ट ये सब पढ़ने में आ जाता है कि ये चीज़ होता है. सो वी हैव दिस एसकी कोड. ओके, कहते हैं इसे हम. अब टेबल में क्या है वो देख लेते हैं एक बार को. कहाँ गया टेबल? अच्छा इसमें. लेट्स कॉपी इमेज. ओहो, रीडेबल है? कुछ ज़्यादा डार्क हो गया? हाँ सर, काफी डार्क सा हो गया। अभी डार्क हो गया तो एक काम करते हैं, हटाओ इसको. फिर हम दूसरे तरीके से करते हैं. फिर ये वाला बेटर. हाँ सर, अब ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? वी आर लुकिंग एट द एसकी टेबल, और जितने भी जीरो का कोड जीरो है, वन का वन है, टू का टू, ऐसे करते हुए कोड्स आ रहे हैं. ठीक है, ये हो गए कहाँ तक? 47 तक. ठीक है, ये यस डेसिमल सर। बात हो रही है, ये नॉर्मल वो 1 2 3 नहीं है ये. ठीक है, एंड इफ यू यस नोटिस सर। फ्रॉम 65, यहाँ से अल्फाबेट स्टार्ट हो रहा है. तो कैपिटल ए का कोड क्या है? 65. आपको कैरेक्टर देखना ही है कि नल का कैरेक्टर होगा जीरो एसकी कोड में. स्टार्टिंग ऑफ हेड और जितने भी चीज़ें हैं, वो इन स्पेस का करेक्टर है 32, एक्सक्लेमेटर साइन का है 33, ऐसे बहुत से करेक्टर है, प्लस का 43. जो अल्फाबेट है वो स्टार्ट होता है 65 से. तो ए बी सी हमने क्या पास किया था वहाँ पे? 67, राइट? यस सर। और कोड में, और इसका एक्चुअली करेक्टर क्या है? सी. सो व्हाट एक्जैक्टली हैपेंड व्हेन यू कॉल दिस राइट मेथड? यू वर एक्चुअली पासिंग द एस्की कोड. ये एस्की कोड है ये. और ये जावा क्या करता है? वो उसको रीड करता है कि बोलता है ओके यू हैव पास एस्की कोड, दैट मींस आई नीड टू कन्वर्ट बैक इनटू अ कैरेक्टर. तो unknowingly it converts back it to C. तो जो हमें फाइल में क्या मिला? C मिला. तो हम अनइंटेंशनली पास करा ASCII कोड. इसने इसको ASCII कोड ही समझा. हमने एक्चुअली इंट से पास किया था राइट में ना. राइट मेथड क्या ही पास किया था इसने? इनपुट लिया था हमने. वी हैव यूज्ड दिस मेथड int writes the specified byte. For us we can see as a human being we can see int, right? हमने अभी तक पढ़ा कि एक प्रिमिटिव टाइप होता है, राइट? पर एग्जैक्टली exactly ये int यस सर। सिर्फ हमारे लिए, मशीन के लिए एक बाइट का डेटा है. और जो भी बाइट डेटा होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज अ एस्की कोड. ठीक है, लेट मी रिपीट अगेन. जो भी आप डेटा इसमें पास कर रहे हो राइट मेथड पे, फॉर अस, फॉर अ ह्यूमन बीइंग और फॉर अ डेवलपर, वी आर सीइंग दिस एज अ, ना डेवलपर तो गलत हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग समझते हैं क्योंकि डेवलपर को तो पता है कि मैं बाइट पास कर रहा हूँ. So for normal person who don't know programming, they will see this as a integer value or numeric value 1 2 3 4 5. But exactly machine कैसे read करती है उसे? Bytes में. And whatever byte you will pass in your method argument, it will be treated as a ASCII code. So जो पास किया हमने वो ASCII कोड था, और ASCII कोड के अकॉर्डिंग हमने पास कर दिया इसके अंदर C. तो वो कन्वर्ट करता है ASCII कोड को इंटरनली और हमें दे दिया इसमें C. तो A to Z कैरेक्टर खत्म.
फिर ऐसी स्मॉल कैरेक्टर के लिए 97 से स्टार्ट होता है, ये रहा। तो स्मॉल ए के लिए 97 कोड है, कैपिटल ए के लिए 65 है। एक काम और करते हैं, दो तीन कोड प्रिंट करके देख लेते हैं, तो क्लियर हो जाएगा। अब मैं 97 पास करता हूँ मैं, जो स्मॉल ए का कैरेक्टर कोड है, एस्की कोड। राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन, डेटा गॉट रिटन। ओके, अब फाइल को ओपन करते हैं, तो क्या बोल रहा है ये, द फाइल हैज बीन मॉडिफाइड, डू यू वांट टू रीलोड, आई विल से यस। क्या आ गया, सी ए, राइट। तो यस सर। ये एक फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स राइटिंग इनटू अ फाइल। स्टेप सिंपल थे, पहला आपको फाइल का लोकेशन देना, जब तक आप फाइल का लोकेशन नहीं बताओगे फाइल कहाँ राइट होगी, तो पहले तो ये काम। दूसरा, वो क्लास यूज करनी है जिसमें वो आप पाथ पास करोगे, सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, अल्टीमेटली राइटिंग। तो अभी जो हमने देखा कि एक एक कैरेक्टर, एक्चुअली वी आर पासिंग बाइट, तो और हमको दिखता है वो कैरेक्टर, तो अब वी आर पासिंग बाइट्स इनटू अ मेथड, दैट इज राइट मेथड, एंड इट विल कन्वर्ट इंटरनली इनटू अ कैरेक्टर। एक्चुअली इट्स ASCII कोड। तो इस तरह हम कोड को को भी कंटेंट को राइट करते हैं एक फाइल पर। कुछ समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, कट इसको। ये 6 इमेज और इसका आउटपुट हमें मिल रहा है फाइल में, ये दैट्स हाउ वी राइट इनटू अ फाइल। अब आपको क्या करना है, द होमवर्क इज ट्राई टू सी, अभी हमने सिर्फ एक ही कैरेक्टर पास किया, राइट, तो ये हो गया। सो यस सर। क्वेश्चन और होमवर्क इज try to write into a file as a, or you can say long data, I'm just saying long data, okay, or multiple lines, that will be better. Multiple lines, try to write into a file, um, into a file by using file output stream class। क्वेश्चन क्लियर, क्या करना है? अभी तो सर मैंने, जैसे अभी हमने दो करेक्टर प्रिंट हुए हैं, सी और ए। राइट, तो मतलब उसमें वो है, हमने राइट की है, तो वैसे मतलब पूरी लाइन प्रिंट करनी है सर। हाँ, लाइन मतलब मल्टीपल डेटा उसमें होगा, है ना। ठीक है सर। अब थोड़ा सा टिपिकल है वो, चेक करिएगा कैसे पॉसिबल है, अदरवाइज मुझे पहले वर्किंग एग्जांपल चाहिए। वर्किंग में तो कॉपी पेस्ट करके ले नेट से, कोई इशू नहीं है, दैट आई वोंट माइंड। मैं नहीं बोल रहा कि भाई सोचो और सोचते रहो, सिंपल है, गूगल सर्च करो और निकालो। डेवलपर से ही काम करते हैं, उनको दिमाग इतना नहीं लगाते चीज़ों पे, उनका काम होता है मेनली कॉन्फ़िगरेशन, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर करना, बिल्ड करना, डिप्लॉय करना। कोड सबसे लास्ट में आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैं सबको कहता हूँ, तो मैं ही बता रहा हूँ कि जब आता है डेवलपमेंट की बात, तो 95 से लेके 99% कोई भी डेवलपर होगा, जूनियर गाइज होगा या सीनियर गाइज होगा, वो प्रेफर करते हैं कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ओपन करना। अगर वहाँ नहीं है तो फिर नेट पे सर्च मार के, स्टैक ओवरफ्लो एक बढ़िया साइट है, वहाँ से कोड निकाल लेना और उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना। सो सब लोग कौन सी यूज़ करते हैं सर साइट कौन सी बताई सर आपने? स्टैक ओवरफ्लो। अरे भाई बहुत यूज़ होगा वो, टेंशन मत लो, मैं दिखा दूंगा कैसे यूज़ करते हैं। स्टैक ओवरफ्लो एक बहुत बढ़िया साइट है, तो वो उसमें एरर मिलते हैं कि कैसे एरर रिजॉल्व होते हैं, तो वो बहुत मिलेगा आपको। अभी हम जब आगे, जैसे भी हमने हाइब्रिड स्टार्ट किया ना, हाइब्रिड में मैं एरर आपको दिखाऊंगा, फिर इसको सोल्यूशन में दिखाऊंगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है, काम का कोड, फालतू कोड नहीं। ठीक है, तो ये तो जरूरी है। मैंने आपको परसेंटेज बता दिया कि इतने परसेंटेज यूजर यूज करते हैं, कोई भी डेवलपर, कितना भी स्मार्ट डेवलपर हो, वो इतना टाइम स्पेंड लगाया कि मैं लिखूं कोड, दे विल गो फॉर कॉपी पेस्ट। सबको अपना टाइम बचाना है ओके सर। guys, है ना, सबको अपना टाइम बचाना है। सब सोचते हैं कि अपना टाइम बचे और कहीं और स्पेंड करें, चाहे घूमने निकल जाओ, कुछ भी करो, काम टाइम से होना चाहिए। ओके, द अल्टीमेट थिंग इज मैनेजर नीड्स योर वर्क ऑन टाइम, कैसे भी करके लो, डजेंट मैटर।
पर ये नहीं कि ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट कर दिया और बोल दिया हाँ चल रहा है, कोड चल रहा होगा लेकिन गलत तरीके से नहीं करना, थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा उसमें। ओके, सो दैट्स हाउ वी राइट इनटू फाइल। अब जो हमने डेटा राइट किया है उसको रीड भी करना होगा, है ना, वो ट्राई करते हैं। सो इतना सेव हो गया अपना, ठीक है। तो इस पर जाते हैं, राइट क्लिक, न्यू, और अगेन आई क्रिएट अ जावा क्लास, ऐसे फाइल इनपुट स्ट्रीम टेस्ट। आई होप यू हैव नोटिस, मैं सिर्फ एक एक लाइन का एग्जांपल बनाता हूँ मैं समझाने के लिए, है ना, ज़्यादा लॉजिक डालना नहीं उसमें। लॉजिक ऐड कर दिया यस तो सर। आप कॉन्सेप्ट छोड़ के उस लॉजिक में चले जाओगे, लॉजिक ये कैसे काम कर रहा है। तो कीप योर एग्जांपल्स अल्ट्रा सिंपल, मुझे बहुत बड़े लॉजिक के एग्जांपल्स में चाहिए। जितना सिंपल एग्जांपल बनाओगे उतना कॉन्क्रीट बेस बनेगा, उसके ऊपर आप फिर 50 लॉजिक डाल दो, डजेंट मैटर, बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि आप पढ़ क्यों रहे हो उसको, एग्जैक्टली यूज़ किया है। तो अगर आप नोटिस करोगे अगेन, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, मैंने इसको 3 स्टेप्स में फाइल में डेटा डाल दिया, इसका बन रहा है यहाँ पर। फर्स्ट स्टेप में फाइल का पाथ, सेकंड में ये, थर्ड में राइटिंग। सेम स्टेप में इनपुट में करूंगा, ठीक है। पहला हमें फाइल का पाथ चाहिए, कि आपको ये तो पता होगा ना कि फाइल कौन सी रीड करनी है, ब्लाइंड तो जाओगे नहीं। तो पहला स्टेप है, गिव द फाइल पाथ और डायरेक्टरी लोकेशन वेयर फाइल नीड्स टू बी रीडेड, ठीक है। पहला लोकेशन में देना पड़ेगा। तो ये तो आपको पता होगा ही होगा कि ये फाइल आ रही है। नहीं पता होता तो फिर उसके दूसरे तरीके होते हैं कि थिंक अबाउट अ रिक्वायरमेंट, कि देयर इज अ फोल्डर एंड लेट्स से रिक्वायरमेंट इज दैट यू नीड टू रीड ऑल द फाइल्स फ्रॉम दिस लोकेशन। ओके, गॉट द आइडिया, कि एक आपको फोल्डर दे दिया कि यहाँ पे बहुत सारे आपके पास फाइल्स पड़ी हुई है, टेक्स्ट फाइल में पड़ी हुई है, तो आपको उसको रीड करना है। अब आपको फाइल का नाम नहीं पता, तो सो वी हैव अ डिफरेंट क्लासेस फॉर दैट, कि स्कैन ओवर ऑल दिस फोल्डर एंड लिस्ट आउट ऑल द फाइल्स एंड वन बाय वन रीड ऑल द फाइल्स। समझे शुभम क्या होता है मैंने? यस सर। तो वो रिक्वायरमेंट बेस होता है। अभी हमको फाइल का नाम पता है, तो वी हैव हार्ड कोडेड दैट फाइल नेम, डन। नेक्स्ट इज, जैसे हमने आउटपुट पे क्या किया था, फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास यूज की थी और वहाँ पे फाइल का पाथ दे दिया था, समथिंग सिमिलर वी विल डू हियर। तो यहाँ पे हमारी क्लास है फाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, इंपोर्ट कर लिया इसको। देन fis इक्वल्स न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और अच्छा एक और दिखाता हूँ इसके कितने कंस्ट्रक्टर्स हैं। ओके, सो वी हैव 3 कंस्ट्रक्टर्स, हाँ 3, फाइल, फाइल डिस्क्रिप्टर एंड स्ट्रिंग। तो आई विल गो फॉर थर्ड वन विच टेक्स स्ट्रिंग एंड आई विल पास फाइल पाथ, डन। और जैसे ही कंप्लीट हुआ, एक्सेप्शन थ्रो करेगा कि मे बी आप फाइल का नाम गलत दे रहे हो, सो सराउंड विथ ट्रैकेज, तो ये फाइल हैंडलिंग करनी होगी। तो पहला स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप भी हमने कर दिया, उसको भी कॉपी कर लेते हैं, pass the file path to file input stream। ओके, थर्ड स्टेप, गेस करो क्या होगा थर्ड स्टेप इसके हिसाब से। ये था इसमें, सर अब उसको रीड करेंगे सर। बस यही करना है, हो गया, रीड फ्रॉम द फाइल। और उसका रीड का मेथड है, जैसे उसमें राइट था ना, मेथड का नाम कैसे कर सकते हो आप आराम से, उसमें रीड था तो एफ उसमें आई राइट एस होगा, डॉट रीड। रीड, हो गया। और इसको डेटा रीड कर लेते हैं। अच्छा, रीड, रीड भी एक्सेप्शन थ्रो करेगा, जैसे वहाँ पे राइट एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था ना आईयू एक्सेप्शन का, कि मे बी इट वोंट बी एबल टू राइट, तो इसने थ्रो किया आईयू एक्सेप्शन। ऐसे रीड भी कर रहा है, होवर करो माउस को तो बता देगा ये, अरे भाई बता दे। हम्म, चलिए दिखाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन। पब्लिक इंट, अगेन ये मेथड इंट रिटर्न करता है और थ्रो करता है आईयू एक्सेप्शन, और इक्लिप्स अभी करा नहीं रहा, चलो इसको होल्ड कर देख लेते हैं। सो इंट अल से डेटा, अब शायद बोले, आ गया। ओके, सो लेट्स हैंडल दिस एज वेल, स्ट्रिंग एच ब्लॉक, नहीं इसको यहाँ से लगाते हैं, सराउंडिंग ट्रैक एच। ओके, सो इसने थ्रो कर दिया आईयू एक्सेप्शन, डन। और अब ट्राई करते हैं sysout डेटा, ठीक है। फॉर सिंप्लिसिटी आई जस्ट कीप वन करेक्टर, ठीक है, सी रखा है उसके अंदर, तो हम अबाउट टू रीड सी फ्रॉम द फाइल। तो राइट क्लिक, रन एज एप्ली रन एज एप्लीकेशन,
मुझे क्या मिल रहा है? 67। 67। यहाँ पे क्या था? सी। इसे रीड करा सी और रिटर्न क्या कर दिया? 67। अब आपको पता है 67 क्या है, राइट? स्काई वैल्यू। इसके स्काई कोड है ये। तो डजेंट मैटर व्हाट यू हैव इन योर फाइल, इट विल रिटर्न इट्स ASCII कोड। अब आपको यह 67 से क्या मतलब है? टिपिकली अगर आपको फाइल रीड कर रहे हो तो मुझे दिख रहा है फाइल के अंदर सी, तो मुझे कोड में भी सी चाहिए, राइट? यहाँ मुझे सी चाहिए होगा। तो यस सर। उसके लिए हम करते हैं कास्टिंग। ओके, सो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है इसमें। कास्ट द डेटा इनटू कैरेक्टर। इतना तो हमको पता है ना कि उसके अंदर कैरेक्टर पड़ा हुआ है, यस सर। तो हमें पता है कैरेक्टर में कास्ट कर देंगे। डेट इज कन्वर्टिंग द डेटा इनटू कैरेक्टर टाइप फ्रॉम बाइट टू कैर टाइप। ठीक है, जो डेटा हमें दिख रहा है वो एक्चुअली क्या है? वो बाइट में डेटा है वो। सो हम इसको रीड करेंगे क्योंकि फाइल इनपुट और फाइल आउटपुट बाइट पे ही काम करते हैं, राइट? वी हैव सीन दिस कि बोथ आर बाइट ओरिएंटेड क्लासेस, तो ये बाइट में ही डेटा रीड करते हैं। हम विजुलाइज कर रहे हैं इसको क्योंकि ये विंडोज़ मशीन है, इट्स अ यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो सब कुछ आपको सी में दिखाएगा। ये बाइट में थोड़ी डेटा दिखाएगा आपको, बाइट में पढ़ ले फिर आप काम कैसे करोगे, है ना? तो ये हमें रीडेबल फॉर्मेट में दिखा रहा है। पर एज अ डेवलपर वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कंस्ट्रेंट और अकॉर्डिंगली हमें काम करना है। तो हम क्या करेंगे? एक कैट ऐप लेंगे, लिखेंगे डेटा इन कैर टाइप। अब आप देखो जो वेरिएबल का नाम है, अगर कोई भी इसको पढ़ेगा समझ जाएगा ना क्या लिखा हुआ है, डेटा इन कैर टाइप। और इसको और क्लियर कर यस दो, सर। डेटा इन बाइट टाइप। तो वेरिएबल्स के नाम, क्लासेस के नाम, मेथड्स के नाम ऐसे रखो जो पढ़ के समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अब कास्टिंग कैसे करनी है? क्वाइट सिंपल। पहले तो अपना वेरिएबल जिसमें डेटा है उसको लेके आओ यहाँ पर जो बाइट में है, और इसके सामने मैं इसको एक ब्रैकेट लगाऊंगा और लिख दूंगा यहाँ पर कैर। बस खत्म। ठीक है, और जो भी डेटा हमें पास हुआ है जिसके अंदर डेटा कन्वर्ट हो गया है उसको कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो। उसको थोड़ा सा और मीनिंगफुल कर देते हैं। डेटा फ्रॉम डमी फाइल इज दिस। ओके, रन करके देखते हैं। तो राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन, आगे सी, है ना? अब यस अगर सर। इसमें चेंज करता हूं ताकि दिख जाए कि चेंजेस, लेट से जेड, कैपिटल जेड यूज कर रहा हूँ मैं। और अगर अपना टेबल ओपन करें तो कैपिटल जेड का है 90। ठीक है, तो इनिशियली आई विल डू विदाउट कन्वर्जन ताकि डेटा दिखे हमें। एक काम करते हैं, दोनों प्रिंट कर लेते हैं, है ना? डेटा इन बाइट टाइप और डेटा फ्रॉम फाइल इन बाइट। तो हमें दोनों डेटा दिख जाएंगे इन। ठीक है, अब दोनों फॉर्मेट में हमें डेटा दे जाएगा। अब z है तो 90 और z दिखेगा। सही है, मेकिंग सेंस? यस सर। यस सर। अभी तक हम क्या कर रहे हैं? हम वन बाय वन चीज़ों को रीड और राइट कर रहे हैं एक ही टाइप में, है ना? तो ये हो गया रीडिंग का, हाउ टू रीड फ्रॉम द फाइल इन बाइट फॉर्मेट। और ये रहे इसके आउटपुट, और फाइल में हमारा डेटा सिर्फ एक कैरेक्टर था। व्हाट इफ वी पुट टू कैरेक्टर्स? क्या कहते हो, क्या होगा? एनी गेस? सर 2 स्काई वैल्यू शो करेगा। देख लेते हैं, क्या कहते हो, करेगा नहीं करेगा? ये तो वन बाय वन रीड करने के, बाइट रीड करता है। बाइट्स, मैंने बाइट्स तो कभी कहा नहीं है ना, डॉक्यूमेंट ने कभी नहीं कहा कि बाइट रीड करेगा। इट वाज जस्ट सेइंग बाइट, एक सिंगल बाइट रीड करेगा। तो आइडियली तो वन रीड करना चाहिए। चेक कर लेते हैं, मैं यहाँ पर अभी ज़ेब्रा कर देता हूँ। ओके, और कोड चलाते हैं फिर से, सेम वही डमी फाइल रीड कर रहे हैं, इसमें डेटा अपडेट हो चुका है। तो भी रीड, ओके, रन एज एप्लीकेशन। अभी भी सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर ही रीड करेगा, ठीक है? सो डजंट मैटर हाउ लॉन्ग योर फाइल है और कंटेंट इट हैज, इट
this class will always read only one byte. So here comes the question for you कि ट्राई करना है, चाहे राइट ना हो पाए कोई बात नहीं, राइट का थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, आई विल एग्री विद दैट, पर नेक्स्ट वाला इट विल बी क्वाइट सिंपल एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले ये ट्राई करना, ट्राई टू रीड मल्टीपल फाइल्स, नॉट फाइल सॉरी, लाइन्स फ्रॉम द फाइल बाय यूजिंग फाइल इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, सो आई सजेस्ट कि पहले सेकंड वाला ट्राई करना और देन राइट करना। रीडिंग इज क्वाइट इजी, सर्च करिएगा नेट पे मिल जाएगा, नहीं मिलता तो फिर कल इसको करते हैं। इतने में कोई डाउट या क्वेश्चन, जो भी हमने ये 5-6 इमेजेस क्रिएट करी किसी भी इमेज में? न- नहीं सर। बढ़िया है सब। यस सर। ठीक है, सो इफ यू गॉट दिस दैट मीन्स वी कैन मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट में क्या करके रखा हुआ है, फाइल क्लास दिखाया, एक फाइल टेस्ट भी दिखा देता आपको मैं, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको हम कैरेक्टर वाली क्लास पे करेंगे। तो अभी इसको यहीं रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू पिक फाइल, एक क्लास है उसका नाम ही फाइल है, जावा फाइल है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फाइल डॉट जावा। फाइल जो जावा दिखती कैसी है वो देख लेते थोड़ा सा, इसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं। सो लेट्स गो टू अवर वेब, टाइप फाइल जावा डॉक, ये रहा ओरेकल का वेबसाइट, और यहाँ पे इसका क्लास सिग्नेचर। सो व्हाट इट सेज, public class file extends object class and implements these many interfaces. Okay, that's fine. What exactly it used? An abstract representation of file and directory path names. तो एक तरह से ये एक आपको व्यू देता है, जो भी आपकी फाइल डायरेक्टरी है उसका, जो पाथ नेम्स मतलब जो यूआरएल, यूआरएल कह लो या कुछ भी कह लो, लोकेशन फाइल का। User interface conversion path name, leave it. Instance of this one may not. Instances of the file class are immutable. इसका क्या मतलब है? सर इम्यूटेबल मतलब जो खत्म नहीं की जा सकती, तो चेंज नहीं हो सकती है जावा में, चेंज बाकी नहीं हो सकती। है ना, हाँ खत्म नहीं हो सकती या फिर चेंज नहीं हो सकती है। सो अगर जो एक बार फाइल का इंस्टेंस बन गया वो इम्यूटेबल है, वो चेंज नहीं हो सकता, वो उसके लिए फिर नया ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। फाइल्स रियल टाइम में ठीक है, बट थिंक अबाउट यू आर वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट और एक इनक्रिप्टेड फाइल है, मे बी उस फाइल में कुछ पासवर्ड है जो आपको रीड करना है रन टाइम पे और यूजर को लॉगिन करना है, तो वहाँ पे सेंसिटिविटी बढ़ गई, राइट? तो ऐसे केस में जहाँ पे एक फाइल के अंदर पासवर्ड पड़ा हुआ है, आपने देखो कुछ साइट सपोर्ट करती है, कुछ इनक्रिप्शन वगैरह होता है, तो उसमें फाइल अपलोड करो, वो साइट वहाँ उस फाइल से रीड करेगा और आपको लॉगिन दे देगा, ऐसी साइट्स हैं। तो यहाँ पर हम वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जिसको प्रॉपरली मैनेज किया जाके, तो अगर आप इसको म्यूटेबल कर दोगे तो कोई भी डेटा रीड एंड राइट कर देगा उसमें जब प्रोसेस हो रहा होगा। दैट्स व्हाई वी मेक दिस क्लास इम्यूटेबल, कि एक बार ऑब्जेक्ट बन गया और उसमें जो फाइल चलेगी, जो भी पाथ चला गया फाइल का, वो इसने प्रिजर्व कर लिया, वो चेंज नहीं होगा। अब वो तो सीधा डिलीट ही होगा मेमोरी से, तो कोई इसको चेंज नहीं कर पाएगा। रन टाइम पे अगर मान लो किसी ने अननोइंगली कोड आपको ओवरराइट करने की कोशिश करी, तो वो एरर थ्रो कर देगा। सो दैट्स व्हाई इंस्टेंस ऑफ दिस फाइल क्लास आर इम्यूटेबल। ओके, अब उसके बाद एक नया पैकेज इंट्रोड्यूस किया गया, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट java.io package, right? This is the package, this was released with initial version of java, जब java 1 आया था तब ये पैकेज आया गया। उसके बाद और चीज़ें दिखी कि और क्या कर सकते हैं, सो दे हैव इंट्रोड्यूस, दे मीन्स डेवलपर्स फ्रॉम दिस oracle और sun microsystem, java.neo.file package to access files। तो ये एक नई फाइल दी गई, दिस एपीआई may be used to overcome many of the limitation of the java.io file class। ठीक है, तो बाद में जब लेटेस्ट वर्जन रिलीज किए गए तो एक और पैकेज ऐड किया गया, java.neo, NIO न्यू। सो अर्लियर वी हैव java.io, और उसका एक एडवांस वर्जन रिलीज किया गया, java.new पैकेज। ठीक है, तो ये एक नया पैकेज था। मोस्टली अभी अगर राइट टाइम में बात करूं तो पीपल टेंड टू यूज दिस पैकेज, न्यूली एडेड पैकेज शॉर्ट में दे रहा हूँ, फॉर हैंडलिंग फॉर फाइल हैंडलिंग।
और इसके पहले ऑलरेडी java डॉट आईओ पैकेज था, सो वी आर टॉकिंग अबाउट आईओ पैकेज। बस एक थोड़ा सा आइडिया था कि एक और पैकेज ऐड किया गया। नाउ व्हाट दिस फाइल कैन डू, लेट्स डू दिस प्रोग्रामेटिकली। सो एक एग्जांपल बनाते हैं फटाफट से। लेट्स टेक क्लास फाइल, और ओ यहाँ कैसे चला गया, इसको ड्रैग करके ऊपर डाल देते हैं। ओके, लेट्स क्रिएट मेन मेथड एंड लेट्स क्रिएट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइल, सो हमें फाइल का पाथ चाहिए होगा, तो हम एक फाइल का पाथ ले आते हैं। ये फाइल का पाथ आ गया। ओके डन। व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या कर सकते हैं हम, तो पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जैसे हमने फाइल इनपुट और आउटपुट पे किया था। एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट फ्रॉम वेयर यू इंपोर्टिंग। ओ रॉन्ग नेम, ये ऑलरेडी फाइल क्लास होती है। ये तो कंफ्यूज हो गया जब किसका बनाना है, आईओ या फिर आपके पैकेज का या फिर आईओ पैकेज का। सो बेटर रीनेम द क्लास नेम। ट्राई करो कि आपके क्लास का नाम जावा के जो एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज है उससे मैच ना करे। मेक इट डिफरेंट, रीनेम कर देते हैं। ओके नाउ वी कैन इंपोर्ट फ्रॉम आईओ पैकेज। सो फाइल इक्वल्स न्यू फाइल, और यहाँ पे पाथ देना है तो फाइल पाथ दे दिया। डन। ये एक्सेप्शन थ्रो करता है, नहीं करता भाई ये, इसको ठीक है। नाउ once you have this file object, so you can get multiple information about the file, like let's say sysout, मैं कर रहा हूँ फाइल डॉट, मुझे ये चेक करना है कि एग्जैक्टली फाइल का नाम क्या है। यहाँ पे तो पूरा पाथ है, राइट शुभम, यू कैन सी दिस इज द कंप्लीट पाथ ऑफ द फाइल, बट व्हाट आई वांट यस जस्ट द सर। फाइल नेम, मुझे सिर्फ फाइल का नाम चाहिए इस पूरे पाथ में से। सो फाइल नेम इज, अब इसको रन करते हैं, राइट क्लिक रन एज एप्लीकेशन, और देखो यहाँ पे फाइल का नाम निकल के आ गया। रन टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाथ का आपका क्या करोगे, आपको तो फाइल से मतलब है, तो वो निकाल सकते हैं आप। लाइकवाइज यू कैन गेट फाइल डॉट गेट पाथ। अगेन थिंक अबाउट सिनेरियो कि आपको ये सिर्फ एक फोल्डर दे दिया गया और बोला कि इस फोल्डर में जितनी फाइल्स है सबको रीड करो, तो उस फोल्डर का आपको पाथ चाहिए होगा रन टाइम पे कि एग्जैक्टली फोल्डर का लोकेशन क्या है और क्या उसका पाथ है। सो से फाइल पाथ इज, तो उस केस में ये मेथड हैंडी होगा। अभी तो लगेगा कि क्यों, हमें तो ऑलरेडी पाथ पता है, पर अगर ये पाथ मान लो किसी और डेवलपर ने सेंड किया आपको, आपका एक मेथड है बस वो फाइल रीड कर रहा है, तो उस डेवलपर ने आपको सिर्फ फाइल का पाथ दे दिया, आपको फाइल का पाथ पता करना है, तो आप यूज करते हो फाइल डॉट गेट पाथ। सो वट एवर पाथ हैज बीन सेंड इट विल गेट प्रिंटेड। सी, ऐसे ही और भी मेथड्स हैं, आई एम जस्ट शोइंग यू सम इंपॉर्टेंट मेथड्स। फाइल डॉट कैन रीड और कैन राइट, ये और एक ऑब्जेक्ट दे देगा कि रीडिंग राइटिंग का। फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस प्रिंट करता है लॉन्ग में कि आपके पास उस लोकेशन में कितनी स्पेस है, जो आपकी डायरेक्टरी है वहाँ पे कितनी स्पेस है इसके लिए, वो चेक कर सकते हो आप। बात हो गया, एक ये चेक करना है कि ये फाइल है या नहीं। दिस आउट, इज इट अ फाइल। ठीक है, चेक करते हैं, कोड एग्जीक्यूटेड, इट सेज ट्रू। मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब रन करते हैं कोड को, रन एज एप्लीकेशन। अब क्या है देखो, फॉल्स। अब यहाँ पे फाइल तो है नहीं, है ना, ये एक फोल्डर का लोकेशन है। बैच टू इज एक्चुअली डायरेक्टरी और अ फोल्डर, ये फाइल नहीं है, तो क्या रन किया, फॉल्स। ठीक है, यस सर। तो दैट्स हाउ यू कैन यूज दिस मेथड्स, दे आर रियली हैंडी टू चेक, अगर ये फाइल है तो ही मैं अपने अगला ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, अदरवाइज वहाँ से स्किप कर दूँ। तो ये इफ एल्स में जा सकता है और उसको यूज़ कर सकता है। मैंने ये मेथड बहुत यूज़ किए हैं, करना पड़ता है बैकएंड पर, आपको फाइल हैंडलिंग आनी चाहिए। और फाइल का लेंथ क्या है ये चेक कर लेते हैं। लेंथ ऑफ फाइल इज, ओके एग्जीक्यूटिंग, और क्या आ रहा है, 5। मे बी ये शायद इसका करेक्टर दे रहा है, देख लेते हैं एक बार। चेंज करते हैं इसमें कुछ और वर्ड, डमी फाइल, मैंने फाइल का नाम चेंज कर दिया और यहाँ पे दे दिया चेंज, रन एज एप्लीकेशन 5 आ रहा है। तो ये मे बी कॉन्टेंट होगा जो उसके अंदर पड़ा हुआ है, दिख रहा है। हाँ सर, वो ज़ेब्रा लिखा था ना हमने। हाँ उसका करेक्टर है ये। सो इसको बंद करते हैं, यस। अरे, तो जेब्रा के अंदर फाइल का कंटेंट दे रहा है वो, तो इंक्रीज कर लेते हैं। कुछ रैंडम स्टफ्स दे दिया, लेट्स रन द कोड अगेन, रन एज एप्लीकेशन
18। ठीक है, तो ये जो फाइल के अंदर कंटेंट है उसको रीड कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, सब आप यूज़ नहीं करते, पर हाँ काफ़ी बेनिफिशियल मेथड्स हैं। लेंथ निकाल दिया, और कुछ देखते हैं इसमें से। लिस्ट फाइल्स, अगर आपके पास फोल्डर में हो तो आप लिस्ट फाइल निकाल सकते हो, तो आपको एक एरे देगा। तो मैं आपको सही दिखाया था, बाकी फिर रैप अप करते हैं इसको। सो फाइल का ये एरे देगा, फाइल्स, और इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। ठीक, अब हमारे पास फोल्डर है। अब मैं सिर्फ यहाँ पे लेंथ प्रिंट करता हूँ, सिस आउट नंबर ऑफ फाइल्स इनसाइड दिस फोल्डर। तो फाइल्स डॉट लेंथ डाल दो, जितने फाइल्स होंगे वो एरे बन जाएगा उसका, और लेंथ चेक कर सकते हैं। तो रन एज एप्लीकेशन एंड वी गेटिंग 9। 9 क्या है ये, देखो यहाँ पे 9 आइटम्स, ये 9 आइटम्स है इस फोल्डर के अंदर, बैच 2 के अंदर। तो फाइल्स और फोल्डर लिख सकते हैं, दिस नंबर ऑफ फाइल्स और स्लैश फोल्डर। ठीक है शुभम। सो यस सर। जैसे जितने मेथड्स आप उसको यूज कर सकते हो। अब लेंथ ऑफ फाइल कितना हो गए, 496 हो गया, क्योंकि अभी टोटल बता रहा है बैच 2 का साइज। बैच 2 में जो फाइल्स है उसके अंदर सब फोल्डर है, उसके अंदर अपने कंटेंट है, तो सबको रीड करके बता रहा है कि इसके लेंथ अब हो गया 4096। ये इस फोल्डर का लोकेशन साइज बता रहा है। तो लाइकवाइज यू कैन यूज अदर मेथड्स, यू कैन सी दिस क्लास इज क्वाइट हैंडफुल, राइट। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए फाइल के रिगार्डिंग, इस फाइल को यूज कर सकते हैं। यस सर। अरे क्या आ गए PQ। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम IO पैकेज फॉर टुडेज क्लास। आई होप कुछ कुछ समझ जरूर आया होगा। अब आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। पहले जितना मैंने करा उतना प्रैक्टिस करो, उसके बाद जो होमवर्क दिया है उसको ट्राई करने की कोशिश करो। पहला होमवर्क आपको होना चाहिए कि रीड करना है सारा डेटा बाय यूजिंग फाइल इनपुट स्ट्रीम। जब वो हो जाए तब ट्राई करना कि मल्टीपल डेटा कैसे राइट किया जा सकता है। थोड़े से छोटे मोटे लॉजिक लगाने पड़ेंगे, कुछ लूप लगाना पड़ेगा, और उसको ब्रेक करना पड़ेगा किसी लॉजिक पर, कि जैसे आपने एक लूप चलाया और उसको चला दिया, और बीच में कंडीशन डाल दी कि जैसे ही डेटा स्टॉप राइट हो जाए, बंद हो जाए। स्कैनर क्लास यूज़ करा आपने कभी? क्या सर? स्कैनर क्लास स्कैनर सर नहीं सर, स्कैनर नहीं यूज़ क्लास यूज किया? नहीं करी है सर। ओके, तो फिर स्कैनर क्लास यूज़ करिएगा, उसके बाद इसको ट्राई करिएगा। तो मैं यहाँ पे ठीक है मेंशन सर। कर देता हूँ। स्कैनर क्लास इज सिंपल, वो क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है वो। तो अच्छा सर, वैसे तो वो यूज किया है सर, मतलब जब यूजर से इनपुट लेते हैं हम कहीं भी, मतलब हाँ, वो स्कैनर वो क्लास करने ही है के लिए वो। वो दिया। हाँ हाँ ठीक है वही सर, है वो तो स्कैनर किया है क्लास। सर यूज। चलो ठीक है, तो ट्राई करना, ये स्कैनर क्लास है फिर। ठीक है सर। ट्राई these examples using नेक्स्ट स्ट्रिंग लेते हैं कुछ, अगर याद हो तो ये ऐसे काम करेगा इसमें, यस सर। है ना। वो स्कैनर डॉट नेक्स्ट इन करके सिस्टम डॉट इन पहले आता है उसके। राइट राइट राइट, सिस्टम डॉट इन और सिस्टम डॉट आउट, जो भी रीड राइट करना है। ठीक है, चलो आपको इतना आइडिया अच्छी बात है। तो ट्राई करिए कि इस पे कैसे काम करेगा स्कैनर क्लास के साथ। स्कैनर से क्या करना, डेटा लेना और उस हिसाब से राइट करना। ये राइट के लिए करना है, ये रीड में तो स्कैनर होगा ही नहीं यूज। ठीक है, दिस इज फॉर ठीक है दिस, सर। ठीक है सर। है ना। जब राइट करो तब स्कैनर से करो। रीडिंग तो ऑलरेडी फाइल पड़ी हुई है, बस आपको रीड करना है। टास्क क्लियर? यस सर। चलो ठीक है। ओके, सो व्हाट वी डिड फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, आईओ पैकेज एक पैकेज है जिससे हम फाइल हैंडलिंग का काम करते हैं, और इसके दो टाइप्स हो सकते हैं स्ट्रीम्स के। स्ट्रीम क्या होता है, फ्लो ऑफ डेटा और सीक्वेंस ऑफ डेटा। सो वी हैव टू कैटेगरीज, बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम और कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम। और बाइट ओरिएंटेड में ये सारे क्लासेस हैं जिसमें हमने ट्राई कर रहे हैं फाइल आउटपुट और फाइल इनपुट। तो आउटपुट क्लासेस आर फॉर राइटिंग, इनपुट क्लासेस आर फॉर रीडिंग। नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टर ओरिएंटेड क्लासेस। सो इसमें अगेन बहुत सारे टाइप्स हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फाइल राइटर एंड फाइल रीडर। राइटर का काम फाइल में राइट करना, रीडर का काम फाइल से रीड करना। देन वी टॉक्ड अबाउट एस्केप कैरेक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आपको कि बाय डिफॉल्ट जावा सिंगल स्लैश को स्किप करता है। तो आप क्या करोगे, उसमें डबल स्लैश लगा दोगे, तो पहला स्किप हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, सिंगल स्लैश का। अगर आपने सिंगल यूज़ किया तो जावा स्किप कर देगा, तो बचेगा आपका सी, जो कि पाथ है नहीं, कुछ और ही बन गया। तो देन वी टॉक्ड अबाउट एसके टेबल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक स्टैंडर्ड है आईटी में, और सभी कैरेक्टर्स जो आपके कीबोर्ड में, सबका एक एसके कैरेक्टर है, स्टैंडर्ड कैरेक्टर है, वो चेंज नहीं होता, वर्ड वाइड ही चलता है। फुल फॉर्म ये रहा, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, देन वी गोन थ्रू द एग्जांपल फाइल आउटपुट, कि कैसे किसी फाइल में राइट करते हैं। सो वी हैव अ सिंपल स्टैंडर्ड और स्टेप्स
फाइल का पाथ दो, उस क्लास को यूज करो और फिर अकॉर्डिंगली रीड या राइट है वो मेथड कॉल कर लो, खत्म। पर प्रॉब्लम क्या होगी इसमें, क्योंकि ये फाइल डील करती, जो आउटपुट क्लास है वो डील करती है स्ट्रीम्स में, तो जो भी डेटा आपको मिलेगा वो बाइट में मिलेगा, तो आपको बाइट पास करना पड़ेगा। और बाय डिफॉल्ट आपको जो ये कन्वर्टर है या फिर जावा कंपाइलर है वो कन्वर्ट कर देगा आपको सिंगल करेक्टर पे। तो वी हैव ट्राइड टू प्रिंट टू थिंग्स, 67 फॉर कैपिटल सी, 97 फॉर स्मॉल ए, तो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया। ओके, देन वी टॉक्ड अबाउट फाइल रीडर क्लास। तो जो ऑलरेडी फाइल हमने लास्ट एग्जाम्पल में बनाया था उसी को रीड करा, सेम स्टेप्स, फाइल का पाथ दो, पर्टिकुलर क्लास को यूज करो, उसके कंस्ट्रक्टर में उस फाइल का पाथ पास कर दो, जब ये हो जाए तो आपको मेथड कॉल करना है रीड। इसमें एक ट्विस्ट ये है कि जो भी रीड करेगा वो आपको देगा इंटीजर वैल्यू में, और एक्चुअली क्या है वो बाइट डेटा है। हमारे लिए इंट है क्योंकि वही हम रीड कर पाते हैं, पर मशीन उसको रीड कर रहा है एज अ बाइट, तो इंटरनली उस डेटा को जो बाइट में रीड हुआ उसको कन्वर्ट करता है इंट में। अब इंट में रीड करेगा तो भी मतलब नहीं बनता क्योंकि फाइल में तो हमारे कैरेक्टर पड़ा हुआ है। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू कास्ट दैट, तो जो भी इंट में डेटा आया उसको हम कैर में कास्ट कर देंगे, तो ये डेटा बचेगा, फिर हमने इसको प्रिंट कर लिया। सो दिस वाज अबाउट रीडिंग। तो इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको ऐड करना पड़ेगा कन्वर्जन का। एंड लास्टली वी टॉक्ड अबाउट फाइल क्लास। सो फाइल क्लास इंटरेस्टिंग क्लास है, इसके थ्रू आप अपनी फाइल की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो कि फाइल का नाम क्या है, पाथ क्या है, कितना साइज है उसके अंदर, और क्या क्या कंटेंट्स हैं। और एक नया पैकेज ऐड किया गया जो था नियो पैकेज, NIO। तो इसमें और एडवांस फीचर ऐड किए गए विच वर लैकिंग इनसाइड IO पैकेज। ओके, एंड देन वी सॉ द एग्जांपल हाउ टू यूज इट। सो आई जस्ट यूज सम ऑफ द मेथड्स, नॉट ऑल, तो अपने हिसाब से और मेथड्स ट्राई करिएगा और रीड करने की कोशिश करिएगा। ओके शुभम, ओके सर। चलो दैट्स इट फॉर यस टुडे। सर।